الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آئیے آپ کو ایک ایسے مدرسے سے روبرو کرواتے ہیں جو ان دنوں چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ مدرسہ رانچی سے تقریباً 18 سے 19 کلومیٹر دور پرے پاٹ میں ہے۔ اس مدرسہ کا نام کلیات البنات ہے، جس کا نام کلیۃ البنات للتربیہ الاسلامیہ ہے۔ دا گرلز کالج فار اسلامک ایجوکیشن، یہ 1999 میں اس کی بنیاد پڑی۔ رانچی سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور راتو تھانہ کے اس میں آتا ہے، اور کاٹھی ٹانڑ سے 6 کلومیٹر اندر ہے یہ جگہ، پرہپاٹ بستی میں یہ ادارہ ہے۔ اس کو 1999 میں قائم کیا گیا تھا اور ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، اور شروع سے ہم نے یہاں محسوس کیا کہ ہمارے یہاں کے نہ صرف اپنے بستی کے بلکہ آس پاس کے علاقے کے بچیوں کی باقاعدہ کوئی تعلیم کا نظم نہیں ہے۔ اگرچہ چھوٹے چھوٹے کچھ نہ کچھ ایسے ادارے ہیں، لیکن ہر گاؤں میں ایک بڑا ادارہ نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت سے جو ہے وہ ہزاروں بچیاں جو ہیں ہمارے یہاں سے عالمہ ہو کر نکل گئی ہیں۔ اور اس کی خصوصیت اس ہمارے اس ادارے کی یہ ہے کہ ہم صرف اسلامک ایجوکیشن ہی پر زور نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو پوری طرح جیک بورڈ کا ہائی اسکول کا جو سلیبس ہے وہ ہم پڑھاتے ہیں اور ان کو ہائی اسکول کرواتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو بچیاں پڑھتی ہیں وہ عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول بھی کر کے نکلتی ہیں۔ یہ اس ادارے کا مختصر سا تعارف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں اور بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے اس مدرسے میں۔ سب طرح کی کتابیں پڑھائی ہوتی ہیں، ہندی، میتھ، حساب، یہ سب ہو گیا، اور پھر اردو لائن سے تفسیر ہے اور بھی پرانی کتابیں وغیرہ یہ سب پڑھائی ہوتی ہے اس مدرسے میں۔ بڑی ہو کے آپ کو کیا بننا ہے؟ نرسنگ کورس فی الحال سوچا ہے میں نے۔ اس کے علاوہ ہم نے باقاعدہ ایک اچھی لائبریری کی ویوستھا کر رکھی ہے تاکہ بچیاں جو ہیں وہ اسٹڈی کریں اور ان کا نالج جو ہے وہ بڑھے، اور اس کا ہمارے ہاں کئی ہزار کتابیں ہمارے لائبریری میں موجود ہیں اور مختلف لینگویجز میں ہیں، عربی، اردو، انگلش، ہندی، ان تمام زبانوں میں ہمارے یہاں لائبریری میں کتابیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں CBSE بورڈ کے لائن سے بھی پڑھائی ہوتی ہے اس درجے میں، اور عصری علوم یا پھر جو مذہبی کتابیں ہیں وہ سب بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو کتابیں ہوتی ہیں اسکولی، وہ سب بھی یہاں پڑھائی ہوتی ہے۔ پینٹنگ کیسے کرتے ہیں، نوٹ پیڈ میں کیسے کرنا ہے، کام کرنا ہے، ورڈ پیڈ میں کیسے کام کرنا ہے، پھر رزلٹ کیسے بنانا ہے MS ایکسل میں، یہ سب ساری چیزیں سکھاتے ہیں، اور کس طرح سے وہ MS ایکسل میں جا کر کے رزلٹ بنا سکتی ہے اور کوئی سا بھی کام اپنے فیوچر میں آگے اچھے کر سکتی ہے، کسی بھی آفس میں جا کر کے یا پھر آفس میں بیٹھ کر کے بچوں کو رزلٹ بنانا اور پینٹ وغیرہ سے کارڈ وغیرہ بنانا، ٹائپنگ کرانا۔ جی ٹائپنگ بھی ہے، ماسٹر ٹائپنگ بھی ہے، وہ بچیاں کرتی ہیں
डेली आकर के करती है, उस पर ग्रॉस दिखा जाता है, ग्रॉस स्पीड कितना है, एक्यूरेसी देखा जाता है, ये सब सारी चीज़ें करती है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है आज के मौजूदा ज़माने के एतबार से, और इन्हीं चीज़ों को आजकल इशू बनाया जाता है। तो हमारे लिए खुशनसीबी की बात है और हम सब के लिए कि ये इदारा जो है झारखंड में बहुत ही आइडियल इदारा है। वो इस बिना पर कि यहाँ मजहबी तालीम भी भरपूर दी जाती है, दीनियात के एतबार से, इस्लामियात के एतबार से, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तफसीर है, हदीस है, फ़िक़्ह है और उर्दू के दूसरे और मज़ामीन हैं, तारीख़ है, उर्दू अदब है, और उसके साथ साथ इसमें असरी मज़ामीन, स्कूली तालीम जो है उसका भी भरपूर सिलेबस रखा गया है। मैथ है, साइंस है, जोग्राफ़ी है, हिस्ट्री है, और ये साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसके बाद इंग्लिश है। साथ साथ इसमें हैंडीक्राफ्ट वगैरह के जो और भी हुनर हैं वो सब भी यहाँ सिखाए जाते हैं। जैसे बच्चियों को सिखाई जाती है तालीम, सिलाई की दी जाती है, कटाई की, बुनाई की, और कंप्यूटर वगैरह की भी तालीम, और खान पकवान, ये सब जो है वो सब भी यहाँ अच्छी तरह सिखाया जाता है। एक मरतबा उसका एग्ज़ाम भी होता है हर क्लास के एतबार से कि ये बच्चियाँ पकवान में से कितना हुनर तयन किया गया है तमाम चीज़ों का, खेल कूद, पढ़ना लिखना, खाना पीना एंड हर चीज़ों का। वो हमारे नज़दीक बहुत पसंदीदा है क्योंकि हर चीज़ का वक्त पे खाना, वक्त पे खेलना, हर चीज़ का एक टाइम मुतय्यन कर दिया गया है। इस वक्त पे ये बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी निकली हैं कि यहाँ से पढ़ने के बाद जा कर के उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, बीएड किया, और उसके बाद वो जेटेट वो सब पास की, और अभी वो सरकारी स्कूल में टीचर हैं। बहुत सारी बच्चियाँ, कुछ बच्चियाँ अभी गई हैं जो अलीगढ़ में हैं, वो डॉक्टरी की तैयारी कर रही हैं, यहीं से पढ़ कर के गई हैं। वो गोड्डा वगैरह की रहने वाली थी, और भी इधर जमशेदपुर वगैरह की। ये है बच्चियों के फिज़िकल वो फिट रहें, इसके लिए हमने खेल कूद का भी इंतज़ाम कर रखा है, और बच्चियों को उसका भी मौका दिया जाता है कि वो अपनी वर्जिश करें, उनको फिट रहें, और उनमें जो है कम से कम जो है वो उनको परेशानी हो तालीम हासिल करने में। इसके लिए जो सामान मुहैया किया जा सकता है वो सब हमने कर रखा है। हॉस्टल में इस वक्त हमारे यहाँ तकरीबन 500 बच्चियाँ हैं, और हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों का खाने पीने और रहने, तालीम का सारा कुछ इंतज़ाम किया जाता है। हमारे यहाँ मेस सिस्टम है, इन बच्चियों का खाना 3 वक्त उनको दिया जाता है, ब्रेकफास्ट है, और उसके बाद लंच है, डिनर है, और उसके पूरा इंतज़ाम है। हमारे यहाँ किचन मौजूद है, और उसमें कई हमारे कार्यकर्ता हैं जो खाना पकाने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ हमने ज़ाहिर बात है कि जहाँ इतनी बड़ी तादाद है तो कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, इस तरह के शोर होता रहता है, तो बाकायदा हम मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि बच्ची को जो है वो फ़र्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाए, और उसके बाद अगर कोई किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फिर उसको उनके गार्जियन को बुलाकर उनके हवाले किया जाता है कि वो मज़ीद ट्रीटमेंट करवाएं। हमने ये कोशिश की है कि एक डॉक्टर जो है वो डेली बेस पर आधा घंटा 1 घंटा जो है वो हमारे इदारे में आकर वक्त दे, और वो उसके लिए वक्त देते हैं। और अगर किसी ऐसे वक्त में अचानक किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो हम आसपास जो है वो बच्ची को फ़ौरन वहाँ ले जाकर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पहुँचाते हैं। और एक महीने में कोशिश करते हैं कि एक ओवरऑल मेडिकल चेकअप के लिए कोई इस तरह का कोई व्यवस्था बन जाए, और डॉक्टरों की खिदमत लेकर हम इसका भी इंतज़ाम करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन बच्चों के मेडिकल चेकअप होता रहे। एक और चीज़ जो यहाँ है वो ये कि ज़ाहिर बात है कि यहाँ खाने का बंदोबस्त है बच्चियों के 500 बच्चियों का, तो हम उससे बहुत रियायती किस्म का एक फ़ीस लेते हैं, जो अगर आप सुने तो शायद आपको हंसी आए कि वो 1000 रुपये से कम होती है वो, जिसमें 3 वक्त का खाना दिया जाता है उन बच्चियों को जो इनमें कुछ बच्चियां जो दे सकती हों, तो फिर उनसे हम ये रियायती फ़ीस लेते हैं। और बहुत सारी बच्चियां हमारे यहाँ ऐसी हैं, तकरीबन 40% बच्चियां ऐसी हैं जिनको हम जो है वो उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ उनको रखते हैं, और उनके खाने का, उनके रहने का, उनके तालीम का सारा इंतज़ाम ये इदारा अपने तौर पर करता है।
اور اس طرح یہ ادارہ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے.